Fine, let's see now how Clausius inequality helps to understand entropy as a function of state, right? Entropy को समझने के लिए कैसे this thing helps us, right? Clausius inequality. Okay, since dq by t equal to 0 for a reversible process, right? It was less than 0 for irreversible and it is equal to 0 for reversible. So first of all we will consider reversible process. After that we will go for irreversible process. So suppose I am having a system, okay, that undergoes a reversible process from an state, initial state I, let's call it I, and final state F, okay, and this is an indicator diagram. Let's take PV diagram. You can take some other diagram also, but yeah, for simplicity let's start with PV diagram. So in this diagram we have drawn the process, how the process is undergoing, okay. So suppose you can take any system, उस system के साथ हम कुछ कुछ thermodynamic process करवाते हैं, then और वो thermodynamic process reversible है, that is the important thing here, right? Then so if we are going from I to F, so I need to make an arrow over this path, right? So this is the arrow for going initial position to final position, not position, state, initial state to final state. So let's call it path 1. Now I am coming back to the initial state from the final state, but taking a different path this way, okay, taking a different path. I am calling this path as 2, and again I am making the arrow the way the process is happening, right? Arrow, direction of arrow is important. So process is happening in this way. So this is a cyclic process. That is why this equation is used, cyclic plus reversible, okay. So this is the theme. अब theme set हो गई है. Now we will see that how we can proceed further. Clearly here the process is okay. I have not written the statement, वो लिखना थोड़ा बेहतर रहेगा ताकि पूरा एक कंसिस्टेंटली चीज़ें समझ में आए. ओके, इफ़ अ सिस्टम undergoes a reversible transformation or reversible process from I to F, from initial state लिखते हैं from initial state I to final state F, okay. Do you understand the meaning of initial state? इनिशियल स्टेट की मीनिंग का मतलब क्या है कि इस डायग्राम में इसका यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा P1 T और वॉल्यूम होगा V1, राइट, और यहाँ पर इसका कुछ प्रेशर होगा PF और सम वॉल्यूम होगा VF. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट. ये हम बहुत पहले बात कर चुके हैं कि स्टेट का क्या मतलब है, ओके. सो देयर इज अ सिस्टम हु अंडरगोज a reversible process from initial position I to F, okay. Then it comes back reversibly, okay. ये भी reversible ही है, दोनों ही process reversible हैं from state F to state I. Okay, do you know why did I make a gap in these two lines? Because I want to mention the path. So in the first case, when it was going from I to F, the process is happening through path
1. Okay, through path 1 and here path 2 through path 2. ये important है, through path 2. Okay, fine. Now clearly I1 F2, this is I, this is 1, this is F, and this is 2. So this I1 F2, this is a method to represent the whole circle as whole cyclic process. Okay, so now clearly I1 F2, then coming back to I, okay, is a reversible cycle. Okay, and you can copy this thing here, and we know, and or according to Clausius theorem, this thing is correct. Okay, fine. Now यहाँ पर कुछ तुम नई चीज़ सीखोगे, मे बी यू हैवन सीन दीज थिंग्स बिफोर एवर. दैट इज़ कि ये है डी क्यू बाई टी इक्वल 0. ओके, सो जब ये पूरा इंटीग्रेशन एक कंप्लीट कर्व के अलॉन्ग होता है ना, फुल कर्व, क्लोज्ड कर्व, बेटर टू से क्लोज्ड कर्व, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड कर दिया. तो every time whenever we see these kind of integration, that integration is carrying over full closed curve, तो हमें मेंशन करना पड़ता है कि वो कर्व कौन सा कर्व है. तो ये एक तरीका है इसको डिनोट करने का. तो वी ट्राई टू राइट दिस थिंग, द कर्व, द क्लोज्ड कर्व जस्ट अंडरनीथ दिस थिंग, दिस इंटीग्रेशन साइन, ऐसे ही. ऑल्दो हमने इसका बड़ा नाम रख दिया है, बट इट्स फाइन फॉर आवर केस राइट नाउ. Okay, I think this much is clear. Now clearly we can break this full integration. I mean that is happening from I, then F, then again I can divide or break this integration from I to F, then F to I, right? So RHS को मैं क्या लिख सकता हूँ, dq by t integration from I to F through path 1, right? ऐसे path 1 plus integration dq by t from F to I, but path right now path is 2 and RHS is again 0. Important to remember to see that initial limit, lower limit पहले इंटीग्रल की I है और फाइनल लिमिट F है, बट सेकेंड इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट F है और हाई लिमिट अपर लिमिट F I है, सॉरी. सो दिस लिमिट्स का ध्यान रखना जब तुम डेरिवेशन कर रहे होगे. सो व्हाट कैन आई डू नाउ, आई कैन ब्रिंग दिस थिंग इन द right hand side, right? So dq by t integration is going from I to F through path 1, that is equal to integral dq by t, this thing, but path is now second path. Okay, so using the integration property, जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को फ्लिप करते हैं, then we can get a negative sign, sorry not we can, we get negative sign. अगर मैं इस इंटीग्रेशन को f by I की जगह पे ऐसे लिखना चाहूँ, I by f, तो I need to compensate a negative sign as a compensation. तो वो नेगेटिव और जो एक ऑलरेडी नेगेटिव है ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, देन दिस इंटीग्रल विल बिकम दिस थिंग. अग्री? आई होप दिस थिंग इज क्लियर. RHS में भी तो यही था इंटीग्रेशन, तो ये हमें रिजल्ट मिला.
तो ये रिजल्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। क्या बताना चाह रहा है, आई होप यू कैन गेस, बट स्टिल यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू शुड गेस दिस थिंग, ये बता क्या रहा है। और मैं हिंट ये दूंगा कि ये डायग्राम जो है इसको और ये जो इंटीग्रेशन है इसको साथ साथ अगर तुम देखना देखोगे नहीं देखोगे, तो यू विल सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कैन यू गेस? मे बी ये तुमने पहले कहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, या फिर मैकेनिक्स क्लास में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, वहाँ भी ऐसे कुछ आता है। सो ओके, पॉज द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं एक बार ट्राई दे दो, क्या दिक्कत आती है उसको ट्राई देने में। सो या अगर तुमने सोचा होगा तो बात ये है कि पहला इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन इज गोइंग फ्रॉम आई टू एफ, और दूसरा आरएसएस का भी इंटीग्रेशन क्या बोला है, इट इज़ गोइंग फ्रॉम आई टू एफ। दोनों में इंटीग्रैंड जो है वो सेम है, राइट, इंटीग्रैंड भी सेम ही है और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। बट डिफरेंस क्या है, दोनों में इतना सब कुछ सेम है, राइट, ये और ये सेम है, बट पाथ्स आर डिफरेंट। इट वॉज पाथ, द फर्स्ट एल एच एस हैज़ पाथ 1, आर एच एस हैज़ पाथ 2, बट अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे एरो का साइन उल्टा है, तो ओके, जब यहाँ पे एरो का मतलब क्या है कि एफ से आई आ रहा है, लेकिन जब आई से एफ जा रहा है तो इसका मतलब एरो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर जो ये पूरा बन रहा है ना, इसमें जो एरो है इस एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए ये एरो ऐसे बन जाएगा, इस एक्सप्रेशन के लिए। ऊपर डेरिवेशन में जब हमने स्टार्ट किया था ऐसे किया था, बट नाउ क्योंकि हम उसको आर एस एस में ले गए थे और नेगेटिव साइन से लिमिट्स को फ्लिप कर दिया, तो नाउ एरो विल बी फ्लिप्ड, एरो विल ऑल्सो फ्लिप्ड। ओके, सो ये इंटीग्रेशन ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये जो इंटीग्रैंड है ना, ये कुछ खास है इसमें खास ये है कि भाई ये जो डी क्यू बाई टी है ना, डी क्यू जो है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और टी इज़ द टेम्परेचर एट विच द हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। ये जो डी क्यू बाई टी एक रेशियो, इतना खास रेशियो है कि अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करो दो स्टेट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के बीच में, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम कौन सा पाथ दे रहे हो, चाहे तुम पाथ 1 लो, पाथ 2 लो, वट एवर पाथ यू कैन टेक, जस्ट टेक, बट द वैल्यू इज सेम। ओके, द वैल्यू विल नॉट चेंज। फाइन, आई एम रिपीटिंग कि ये जो डी क्यू बाई टी था, ये एक ऐसा स्पेशल और ऐसा एक कुदरत का तोहफा बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा रेशियो है मैथ्स में या मैथ्स में ये रेशियो हो सकता है और फिजिक्स में ये क्वांटिटी होगी, इसी को हम आगे बोल के कुछ बोलेंगे, अभी हम उसका नाम रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी निकल के आती है, रेशियो, कि भाई वो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसको कि भाई तुम कहाँ से जा रहे हो। आई मीन ऐसे क्वांटिटीज़ तुमने क्लास में भी पता नहीं लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी या नहीं पढ़ी, आई डोंट नो, कि पोटेंशियल में भी ऐसे होता था ना, कि पोटेंशियल फ़र्क नहीं पड़ता था कि, और सबसे इजी एग्जांपल मान लो यू आर क्लाइंबिंग अ हिल। ओके, ये एक हिल है ऐसे कुछ, है ना, तो अब या तो तुम इस हिल में सीधे ऐसे चढ़ के टॉप पे चले जाओ इसके, या फिर तुम इसके ऐसे चक्कर लगा करके ऐसे चारों तरफ के चक्कर लगा करके इसके टॉप पे चले जाओ। बट डजेंट मैटर कि तुम कैसे पहुँचे उस हिल के टॉप पे, बट जो हाइट रहेगी ग्राउंड से, वो ग्राउंड से हाइट तो सेम ही रहेगी ना, सबके लिए सेम रहेगी हाइट। तो वही बात यहाँ पर भी है, तुम किसी भी रास्ते से चले जाओ, इन्फाइनाइट रास्ते, कोई भी रास्ता ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम या तो सीधे चले जाओ ऐसे, या फिर तुम कुछ ऐसे घूम घाम करके मज़े मार करके ऐसे घूम के आओ, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम फाइनली उसी पॉइंट पर लैंड करते हो जिस पॉइंट पर बाकी सब ये लैंड कर रहे हैं, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब फिक्स कर दिया एक बार, तो लैंडिंग करने के बाद जो रेशियो का इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रल ऑफ दिस रेशियो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इट विल बी सेम। दिस इज़ द कंक्लूजन फॉर्म हियर। और मैथमेटिक्स में ऐसे फंक्शन को, या फिर ऐसे, क्योंकि ये डिफरेंशियल है ना, थोड़ा सा डी क्यू का मतलब वो डेरिवेटिव वाला डिफरेंशियल है ये, तो ऐसे डिफरेंशियल्स को जो ऐसे पाथ पर डिपेंड नहीं करते, जिनका इंटीग्रेशन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, दैट दे आर कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो उस केस में क्या होता है कि उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को जो इट इम्प्लाइज दैट डी क्यू बाई टी इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल
of exact differential of some quantity. Okay, exact differential of some quantity, and this quantity is called entropy. This was the entropy denoted by S. तो इसका जो डिफरेंशियल होगा S का, वो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बराबर होगा. तो दिस इज हाउ एंट्रोपी इज डिफाइंड मैथमेटिकली. ओके, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो आगे के चैप्टर्स में आएगा, बट अभी पूरी की पूरी मैथ्स चली हुई है. ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करती है पाथ पे इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जाने में. फाइन. तो अब जहाँ जहाँ पर डी क्यू बाई टी आएगा वहाँ वहाँ पर मैं ये डी एस, डी का मतलब डिफरेंशियल चेंज है और एस का मतलब एंट्रोपी, इस डिफरेंशियल चेंज की एंट्रोपी को मैं पुट कर सकता हूँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एल एच एस ही लूँ, एल एच एस लूँ सिंपल, टेकिंग एल एच एस, तो ये क्या था मेरा डी क्यू बाई टी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. पाथ छोड़ दो अभी. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस इंटीग्रेशन फ्रॉम आई टू एफ. डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, इन मैथ्स यू मस्ट हैव सीन दैट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स. वैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स एस, और लिमिट्स इफ़ यू पुट द लिमिट्स सो इट विल बी लाइक दिस. सो इट इज़ at upper limit final position, final state, lower limit initial state. So this is called change in the entropy. So this thing, okay, therefore SF minus SI, okay, this thing is independent of path. ठीक है. यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला भी ले सकते हो. अब पाथ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैंने यहाँ पर पाथ लिया नहीं ना, 1 2 कुछ लिया भी नहीं मैंने. तो दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. सो चेंज इन द एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो चेंज इन एंट्रोपी है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है. हालांकि हमने स्टार्ट किया था रिवर्सिबल प्रोसेस से, लेकिन दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑल्सो, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट एज ऑफ नाउ यू शुड रिमेंबर दैट entropy is a state function, okay, which means it only its change only depends on initial and final state of the system. Fine. I hope this thing is clear. तो यहाँ से एक आध चीज़ हम और देख सकते हैं कि हमने क्या बोला कि डी क्यू बाई टी जो है वो इसको हम डी एस बोलेंगे आपसे. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी टाइम्स डी एस. ओके, देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, वो क्या था हमारा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. मतलब हम वहाँ पे डेल्टा क्यू लिखते थे ऐसे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द इन्फिनिटेसिमल चेंज. ओके, तो नाउ आई कैन रिप्लेस दिस एल एच एस बाई दिस थिंग टी डी एस डी यू प्लस पी डी वी. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड
क्योंकि ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट लॉ से स्टार्ट किया था, है ना, ये हमने फर्स्ट लॉ से स्टार्ट किया था। और ये जो चीज़ है ना, इसको सेकंड लॉ भी बोलते हैं कभी कभी तो अलग अलग बुक्स में, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, नॉट जस्ट सेकेंड लॉ, क्योंकि इसमें फर्स्ट लॉ भी दिख रहा है और सेकेंड लॉ भी दिख रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कैसे दिख रहा है, क्योंकि हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट लॉ से, और सेकेंड लॉ कैसे दिख रहा है, क्योंकि हमने डी क्यू की जगह पे टी डी एस लिख दिया है। फाइन, ओके। one last thing about the entropy for today's lecture is that entropy is an extensive quantity। हाँ, मतलब अगर हम अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाएं या फिर ये नंबर ऑफ पार्टिकल, और इन बेटर वे ये वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी। वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम घटाएंगे तो ये भी घट जाएगी। ओके, जैसे टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव क्वांटिटी है, और प्रेशर भी जो है वो इंटेंसिव क्वांटिटी है, लेकिन ये एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। एंड वन मोर थिंग, ये थोड़ा सा बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि भाई एंट्रोपी क्या है वास्तव में, वो हम बाद में देखेंगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे एंट्रोपी, क्योंकि अभी हमने सारा मैथमेटिकली डिफाइन किया है। वन मोर थिंग, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल के तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो हमेशा अगर हम देखो, हमने हर जगह पे डी एस ही लिखा है, या फिर हमने डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी लिखा हुआ है, हमारे पास एस का कोई एक्सप्रेशन नहीं है अभी। एस बराबर क्या, हमारे पास या तो डी एस बराबर है, दैट इज डी क्यू बाई टी, या फिर हमारे पास अगर एस है भी तो वो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, फाइनल और इनिशियल। तो हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है एस बराबर क्या होगा, वो शायद तुम पढ़ोगे भी या नहीं पढ़ोगे, वो तुम मे बी, आई डोंट नो। हमेशा हम एंट्रोपी के डिफरेंस की हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्योंकि अगर तुम इसको डिफाइन करना भी चाहो ना, तो यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, पोटेंशियल को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमेशा वी से ना कि द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, सो वी नीड ए रेफरेंस। किसी पॉइंट से लाना पड़ता है हमें चार्ज को, तो वो एक हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। यहाँ पर भी हम एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं, बट वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट। तो ठीक है, वो उसकी ज़रूरत है नहीं हमें डिफाइन करने की एंट्रोपी को, बट हमेशा ध्यान रखना कि हम चेंज इन एंट्रोपी की हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अगर प्रॉपरली एंट्रोपी क्या है उसको समझना है तो वी विल सी इन द फ्यूचर क्लासेस और समवेयर एल्स, बट और सम हायर स्टडीज़। बट राइट नाउ बी वेरी वेरी क्लियर कि हम एंट्रोपी के चेंज की बात करते हैं। अगर हमें जितना नॉलेज अभी तक हमने ले लिया है यूजिंग क्लॉसेस इनइक्वालिटी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट, तो अभी तक हमारे पास एंट्रोपी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। एंट्रोपी हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगी, इतना ध्यान रखना। ओके।